let us start first with your introduction. Hi, I'm Debayan. I come from one of the smallest states in the northeastern parts of our country, Tripura. And I actually completed my graduation from National Institute of Technology in Agartala in the stream of mechanical engineering. From there, through campus placements, I joined Topper.com and I spent a good thriving 3 years in there. And now I'm joining XLRI Jamshedpur in the HRM. That's all about me. Please go. Okay, great. So आपके प्रोफाइल में 10th से onwards कुछ बताइए आपके स्कोर्स के बारे में. Sure, ma'am. So मेरे 10th में आए थे 95%. In 9.5 थे and that amounts to 95%. In 12th, I got 96%, and in grad, I got 85%. Okay, great. For my And 10th have you converted this year? Yeah, I have converted this year. I've converted multiple colleges, and thanks to them from providing me with the opportunity to join those colleges. Converted XLRI Jamshedpur HRM as of now again, and earlier I converted NMIMS 4, SMHRD 4, and of course a BA. And along with that, I converted IMT Ghaziabad and XIBM, and also SIBM and SIIFT. And I'm in the upper waiting list of IIT Delhi DMS, and of course VGC. Okay, great. Congratulations on this host of the colleges that you have converted. I'm sure आपने एक अच्छा कॉलेज select किया है. And going forward, please tell us आपने कैसे decide किया that you wanted to go on this journey of MBA? Sure. Actually, for this MBA, actually thought process start हुआ था even 2 years पहले. So in my first year, I of course after completion of my probation in my organization, that is Topper. तो उस टाइम ज्यादा कुछ सोचा नहीं था कि मैनेजमेंट में जाना है कि नहीं जाना है. तो उस टाइम आई वाज स्टिल रमेजिंग अराउंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है. And after that, I got somewhat interest in general management. क्योंकि उस टाइम my manager was very good and gave me the leadership of 10 interns. तो उस टाइम I got the taste of how the general management works actually. How तुम अपने leadership qualities से, अपने management qualities से the most important asset of the organization, that is the people. उनका कैसे सबसे अच्छा निकाल सकते. And with this, I got the taste of general management, and so I want to come into this MBA. Okay. So if we talk about CAT 22, आपने कब से preparation start की और आपको EG के बारे में कहाँ से पता चला? Sure. Actually, last year मैंने CAT का प्रिपरेशन दिया था, लेकिन उस टाइम मेरा उतना कुछ अच्छा हुआ नहीं था. And after that, I thought of retaking CAT again. तो मेरे कुछ दोस्त ने जिनको ऑलरेडी IIFT मिल चुका है, even they have converted IIFT, they took EG course the earlier year. तो उन्होंने मेरे को बताया कि if you take this course, you won't regret about it. तो इसके बाद मैंने सोचा okay, let's retake, since I'm already thinking of retaking CAT, let's go on with EG, since इनके बारे में सब कुछ अच्छा reviews. Of course, it paid off. Yeah, correct. So which was the batch that you joined? I joined the batch, third batch. That is in the June batch actually. Already 6 months चल गए थे, already 6 months रहे थे बस. हाँ बिल्कुल 6 months रह गए. तो लास्ट के 6 months में कैसी प्रोग्रेस हुई आपकी प्रिपरेशन? शुरू के मंथ्स में तो आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा, बेसिक्स किए होंगे, तो उसके बारे में बताइए क्या जर्नी थी? Sure. तो उस टाइम क्या हुआ था कि पहले 6 months ऑलरेडी चल गए थे, एंड ऑफ कोर्स खत्म भी हो गए थे. एंड ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया था लास्ट ईयर. तो मैंने जैसे कि गौरव सर से मैंने कहा कि सर आप मुझे थोड़ा अर्लियर एक्सेस दे इफ पॉसिबल. तो ऑफ कोर्स ही वाज गुड इनफ टू गिव मी द अर्लियर एक्सेस. तो मैंने क्या किया, थोड़ा इवन विद द करंट करिकुलम जो हनी सर का, गौरव सर का, शानदार सर का चल रहा था, LRTI क्वांट एंड ऑफ कोर्स BIRC, उनके साथ साथ मैंने प्रीवियस बैचेस के भी थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर दिया था. तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन एडवांसिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने उस टाइम जॉब भी छोड़ दिया था, तो थोड़ा टाइम मेरे पास था. तो इट वर्कड अकॉर्डिंग टू माय फिजिबिलिटी. तो वही सीन है. एंड आफ्टर दैट आई वाज एबल टू गो अलोंग विद द मॉक स्लो व्हिच हनी सर डिजाइन अगेन. तो इस तरीके से मैं प्रोसीड कर रहा था. ओके. सो मॉक्स के टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और तब तक आपका क्या कोर्स और बेसिक्स कंप्लीट हो चुके थे? एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट विद योर मॉक्स? So for the mock taking strategy, I blindly followed Hani sir's strategy. ये strategy जो उन्होंने बना के रखी थी, like इस महीने पे इस डे पे ये दो, then 2 या 3 दिन और एनालिसिस करो. क्योंकि of course analysis is too much important for mocks. अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट मॉक्स पे वही गलती दोहराते रहोगे. तो of course analysis was too much important. Hani sir's schedule was my bible for that point of time. तो मैंने वही फॉलो किया. पहले हर 2 हफ्तों में एक दो हो रहे थे, एंड आफ्टर दैट ईच हफ्ते में 2-3 हो रहे थे. तो वैसे करके वो पेस हम पकड़ रहे थे. That's the way. ओके. सो फर्स्ट मॉक से जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, तो कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुई है आपके रिजल्ट्स में, मॉक के रिजल्ट्स में? तो फर्स्ट मॉक में अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उस टाइम मेरा BIRC में उतना कुछ अच्छा हुआ नहीं था. BIRC में काफी कम मार्क्स आए थे. क्वांट में ठीक आ रहे थे, एंड LRDI में भी थोड़ा बहुत ठीक थे.
उतना अच्छा भी नहीं था, थोड़ा बहुत ठीक थे। इसके बाद मैंने बात किया अगेन सर से, गौरव सर से, एंड ऑफ कोर्स शाहजार सर से फॉर द बीआरसी थी। तो इसके बाद उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि सर ये सारी गलतियां हो रहे हैं, तो सर इनको कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने मेरे को बताया कि वो पहले स्ट्रेटेजी समझो उनकी मॉक्स पे कैसे उनको सॉल्व किया गया है, इसके बाद खुद से सोचो कि तुम कैसे सोच पाते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे तुमने कुछ सोचा होगा। तो गो अलोंग विद दैट थिंग अगेन, कि तुमने कैसे सोचा उसको, इसको कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, वैसे सोचो। इसके बाद उनका सोल्यूशन देखो कि उन्होंने कैसे सोचा है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा स्ट्रेटेजी और उनका स्ट्रेटेजी मिलके एक बहुत ही अच्छा कुछ आएगा। ऑफ कोर्स आई फॉलो दैट। ठीक है। तो VARC जैसे आपने बोला शुरू के मार्क्स में अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपने पर्सनली भी कुछ प्रेपरेशन किया उसके लिए, या आपने बस ई चीज को फॉलो किया? Actually, for VRC, I also was an avid reader, even from my childhood also. So even for the मतलब थोड़ा माइथोलॉजी का बुक जो आते हैं अमीश त्रिपाठी के, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत, क्योंकि उस टाइम अलेक्जेंडर मिसल, केविन मिसल, उनका भी थोड़े बहुत बुक्स आ रहे थे, तो मैं वो सब पढ़ता था। तो थोड़ा बहुत VRC से हेल्प मेरा उधर हो गया था कि थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा बहुत था, कमांड था। एंड आफ्टर दैट जैसे पहले दिन एओनेसिस पढ़ा, तो आई थिंक मतलब उस टाइम तो गूगल करके भी पढ़ना पड़ रहा था कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो जैसे जैसे इट वाज गोइंग ऑन, तो अच्छा हो रहा था, थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। एंड ऑफ कोर्स वो क्रिटिकल जो इन्फरेंस के सवाल थे, इन्फरेंस में जैसे कि शाजा सर ने कहा जो है उसी को बस पकड़े रखो, बाहर मत जाओ। एंड आफ्टर दैट along with that also the RCs में +2 -2 का रूल, ये तो मतलब दैट वाज अ गोल्डन रूल कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, गो इनटू द फर्स्ट 2 लाइंस और गो इनटू द नेक्स्ट 2 लाइंस, तो उसमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा तुमको। तो आई फॉलो दोस रूल्स एंड आई गॉट दिस। ओके। तो इसके बाद आपके कैट का एक्सपीरियंस बताइए कैसा था? तो कैट का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स अच्छा था, लेकिन बाद में रिजल्ट्स में उतना कुछ अच्छा नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी हो गया था उस टाइम। तो कैट वाज नॉट द डे फॉर मी, एंड उसमें क्या हुआ था कि आई वाज इन द फर्स्ट स्लॉट, एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट दैट वाज नॉट अ गुड डे फॉर मी। ओके सोचा था अच्छा था, लेकिन इट डिडंट वर्क। ओके। सो कैट के अलावा आई सीन आपने और भी एग्जाम्स दिए हैं, तभी आपका NMIMS CMHRD सब कन्वर्ट हुआ है। तो डिड यू मेक अ प्लान अर्लियर कि मुझे बाकी सारे एग्जाम्स भी देने हैं? एक्चुअली डेफिनेटली कि मतलब ऑलरेडी हनी सर ने भी कह दिया था स्टार्टिंग में कि कैट इज अ हाईली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो उसके भरोसे मत बैठो। ऑफ कोर्स इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू अलोंग विद अदर एग्जाम्स आल्सो, बिकॉज वो सारे एग्जाम्स भी नहीं दिए तुमने तो दिक्कत हो जाएगा। तो आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस कि कैट में कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो भी रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस भी था, तो इसलिए मैंने एनमेट, जेड, स्नैप, IIFT सारे दिए थे, इवेंट टेस्ट नेट फॉर दैट एग्जाम। तो ओके ऑफ ओके। कोर्स एंड नाउ दोस आर माय सेविंग बेस नाउ आफ्टर टैंकिंग ऑफ। ऑफ कोर्स। तो उसकी प्रेपरेशन भी क्या आपके कैट की प्रिपरेशन के साथ हो गई, या आपने बाकी एग्जाम्स की अलग से तैयारी की? क्योंकि सबका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, किसी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जीके आ जाएगा, TMP आ जाता है साथ में, तो उसका आपकी तैयारी कैसे थी? डेफिनेटली। सो जैसे जैसे कि हनी सन का उनका भी डायरेक्शन था कि इस एग्जाम का इस डे से स्टार्ट करना, इस एग्जाम की इस डे से स्टार्ट करना, दैट ऑफ कोर्स हेल्प मी अ लॉट। एंड एक और चीज भी था, जैसे कि एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स भी दे रहे थे जी, तो दैट आल्सो हेल्प मी फॉर्मुलेट माय स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स, कि वो सारा कुछ हेल्प भी तो कर ही रहा था। एंड वो along with that एनमेट में जैसे कि एक और चीज भी आता है, जैसे एडाप्टिव टेस्ट वाला, तो उसका स्ट्रेटेजी भी आपको मालूम होना चाहिए कि उससे कैसे मार्क्स निकाला जाता है ना, उसका टैक्टिक्स भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आंसर करने चाहिए। जैसे कि उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, यू हैव टू आंसर इट सब कुछ, यू हैव टू आंसर इट along with the common sense also some questions, वो सारा कुछ था। एंड along with that एनमेट में एडाप्टिव वो क्या CR के जो भी सेशंस थे हनी सर ने करवाए थे, दैट वाज ऑफ कोर्स वेरी गुड एंड गोल्डन थिंग्स फॉर मी, इसने मेरे को एनएमआईएमएस से कन्वर्ट दिलाने में बहुत हेल्प। तो अगर सेपरेटली आपके उमेट्स की बात करें, आपके NMAT का एक्सपीरियंस हमें बताइए। Sure. NMAT में मेरा स्कोर आया था 237, which is not that great a score according to again NMAT standards. So after that, I fortunately कुछ हो गया था कि they concentrated more on the Watson Gleason test, जिसमें 20% वेटेज आ रहे थे। Yes. Along क्योंकि NMAT के स्कोर से भी कुछ वेटेज आ रहा था मेरे को 237 पे। आफ्टर वाटसन ग्लेसर ने भी मेरे को अच्छा किया, क्योंकि उस टाइम CR जो आ रहे थे वो भी हनी सर के सेशन से मैच हो गए थे। And that course was very much helpful for me, and work exits also also in my favor also. Yes. इसलिए that worked in my favor, and PI went good according to me, and I converted to NMIMS. ओके ओके। एंड इसके बाद अगर स्नैप की बात करें, तो स्नैप की तैयारी कैसी थी? For Snap again, the way was a little bit different, क्योंकि उस टाइम आपको एक घंटे पे आपको सारे आंसर्स करने पड़ रहे थे। तो एंड फॉर स्नैप इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट अप्रोच अगेन, क्योंकि क्वेश्चन लेवल उतना हाई नहीं था एज कम्पेयर टू गेट, बट अगेन इट वाज ऑल स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो उसके लिए भी अलग अलग टाइप के मॉक्स आए थे फ्रॉम EG, दैट हेल्प मी अ लॉट इन आल्सो फॉर्मुलेटिंग माय स्ट्रेटजी।
तो वो सारा कुछ करके एंड ऑफ कोर्स द लेवल जो कि उतना मतलब लेवल उतना हाई नहीं रहता स्नैप में, लेकिन वो दैट आल्सो हेल्प मी लॉट एंड अलोंग विद दैट वो वोकैबुलरी के सेशन जो भी हनी सर ने करवाए थे दैट आल्सो वाज ग्रेट, जो कि आईआईएफटी और स्नैप का एक साथ होके एंड इट वर्कड आउट फॉर मी। So if we talk about your percentile, वो कितनी थी? For Snap, it was 99.07 percentile, and I Okay. in that I was able to convert SMHRD, SIIB, and SI. And Okay. SIBM Pune में भी I am in the upper mid list again. Okay. 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 And इसके बाद IIFT और ZAT के बारे में बताइए. Sure. So for IIFT, the pattern went a little bit different actually, क्योंकि IIFT का quant थोड़ा difficult भी आता है कभी कभार, and उसका DI भी थोड़ा बहुत difficult आता है, and IIFT में सबसे ज्यादा वेटेज कभी कभार मिल जाता है BRC and of course the GK part. तो GK part के लिए हनी सर ने लास्ट कुछ दिनों में डे लॉन्ग ऑलमोस्ट 10 to 12 के सेशन लिए थे उन्होंने कभी कभार. So that of course all worked according to my advantage, along with my advantage also, because रट गए थे पूरे उस टाइम जब सवाल, and with this I was able to actually score 20 in GK, so that was almost 99.98% IIFT. And along with that BRC also helped me a lot, क्योंकि मैंने रूट वर्ड्स उस टाइम हनी सर ने जो करवाए थे वो भी सारे याद हो गए थे, क्योंकि जो कभी कभी उन्होंने एक शीट दिया था वही पढ़ के गया था रूट वर्ड्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस केम कॉमन फॉर मी, एंड क्वांट एंड डीआई के लिए तो वो पहले से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन था, एंड दैट आई डिड इट. ठीक है. And how much did you score in IIFT? In IIFT I scored 99.6%. Okay, okay. And अब लास्ट एग्जाम की बात करते हैं जो ZAT है, जो आपका कन्वर्ट भी हो गया XLRI, तो उसकी प्रिपरेशन DM वगैरह. So ZET में क्या होता है, उसमें DILR का कुछ तो आता नहीं, एंड DILR के जैसे ऐसा कुछ नहीं आता है, तो बट वन सेक्शन व्हिच कम्स न्यू इन ZET इज अ DM सेक्शन, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग. तो वो कुछ अलग टाइप का वो सेक्शन हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए भी हनी सर ने पहले ही कह के रखा था कि ZET के लिए उतना टेंशन मत लो, बाद में हम लोग देखेंगे इसको. एंड फॉर डिसीजन मेकिंग अगेन तो उन्होंने बाद में कई सारे सेशंस किए, एंड काफी सारे टैक्टिक्स भी उन्होंने बताया कि कैसे इसको करना है, एंड ऑफ कोर्स द गोल्डन रूल वाज देयर, जो है वही है, इससे आगे मत सोचो, इसके पीछे भी मत सोचो. तो दैट ऑफ कोर्स वर्कड आउट आल्सो इन माय फेवर. वैसे ही एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इन द टेस्ट आल्सो आंसर्ड इट अलोंग विद दिस रूल अगेन, कि जो क्वेश्चन में दिख रहा है, जो पैसेज में दिख रहा है, उसी हिसाब से मैं आंसर कर रहा था, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि उसमें मेरे को 99.5 प्लस भी अगेन आ गए थे डीएम में. एंड ऑफ कोर्स क्वांट एंड इंग्लिश में तो नॉर्मल जैसे प्रिपरेशन चल रही थी, कि जेड का क्वांट काफी कबार डिफिकल्ट भी आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सिलेक्शन भी वो जरूरी था, तो वो सिलेक्ट करके मैं आंसर कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स द इंग्लिश आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस, इट वाज अ लिटिल बिट इजियर अगेन दिस टाइम अराउंड. एंड ZAT में एक ऐसे पार्ट भी आता है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसी थी आपकी? एक्चुअली जेट में मैंने आई एम ए जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट, तो मेरे पिछले 6 महीने से जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे थे, वो सब कुछ मैं पढ़ रहा था, तो थोड़ा बहुत आइडिया था, और मैं चीजों को रिलेट कर पा रहा था, कि अननोन चीजें भी थे, मैं उनको एक साथ रिलेट कर रहा था. तो उससे फॉर्चुनेटली फॉर मी एक ऐसा आया था ऐसे कि ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया, आई थिंक इट वाज ऐसे, तो आई वाज एबल टू रिलेट विद दिस विद माय करियर, विद माय ऑलरेडी लर्न्ड थिंग्स एक्चुअली, उसमें मेरा ऐसा हो गया. ऑफ कोर्स ऐसे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आई थिंक एक ऐसे हमेशा ही आएगा जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेगा, तो इट्स इंपॉर्टेंट आप करंट अफेयर्स से हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि वन अदर थिंग जेट में एक सेक्शन भी आता है जीके, उसमें भी वो सवाल आता है, क्योंकि जीके हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट, जीके आल्सो हैज सम वेटेज इन फाइनल सिलेक्शन आल्सो आई थिंक, तो वो ऑफ कोर्स उनको हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन. तो करंट अफेयर से जुड़े रहने का ड्यूरिंग द कैट, इवन द एमबीए प्रिपरेशन, कैट मैट कैट एंड अदर ओमेट्स आल्सो, you have to always be connected with the current affairs. That is my advice. And we talk about your ZAT percentile. It was 98.9%. Okay, okay. So जैसे एक बार कैट आपने बोला कि आपका it was not your day, उसके बाद आपने इतने सारे ओमेट्स दिए थे और बिल्कुल दिसंबर जैम पैक्ड हो जाता है, तो क्लियरली आपने वो शिफ्ट तो अच्छे से कर ही लिया, बट वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर, एक शिफ्ट वो करना, हाउ डिड यू कोप विद दैट? For that actually I had to think of this like this, जो हो गया सो हो गया. Even if I continue thinking about cat, it won't actually help me, क्योंकि that is a immaterial thing again. क्योंकि अगर मैं सोचूं कैट में मैं ये करता वो करता, it won't help me in increasing my marks in cat. जो हाथ में है उसी पे आई कैन फोकस. एंड ऑफ कोर्स उसी दिन एक्चुअली कैट दे के आके मैं हनी सर से बात किया था कि सर ये हो नहीं पाएगा, क्या करें, अब तो डिप्रेस्ड हुआ हूँ. देन ही सेड जो अभी के लिए है सामने उस पर फोकस करो, इसको लेके बाद में सोचेंगे. And then from that day actually I thought I'll keep everything after set. I'll think of other things after set actually. Set तक मैंने पूरा इसी सारे एग्जाम्स पे फोकस किया, and I was able to do good through that philosophy only.
यस ऑफ कोर्स, जैसे सर भी बोलते हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो अगर एक एग्जाम आपका टैंक हो गया डज नॉट मीन कि बाकी एग्जाम्स आपको वो लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। एंड यू हैव बीन अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि बाकी श्योर, एग्जाम्स आपके काफी अच्छे गए। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एग्जाम्स कभी का वो लक पे ऊपर बहुत ज्यादा वेराइटीज रहते हैं, लक के ऊपर भी काफी फैक्टर होता है। सो इफ यू कांट एक्चुअली गिव योर बेस्ट इन वन एग्जाम, हम्म यू कांट बी हेल्ड डाउन फॉर दैट। बहुत सारे अदर एग्जाम से एक ना एक करके तो यू कैन जस्ट गो इनटू ड्रीम बेस में, जो कि हनी सर भी हमेशा कहते हैं। या दैट वाज अगेन माय गोल्डन फिलोसॉफी फॉर दैट पीरियड, यू कैन से। हम्म। तो आपने जितने भी ओमेट्स दिए उसके बाद आपको एक आइडिया तो होगा कि अभी सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए, अभी मेरे पास कॉल्स भी बहुत आने वाले हैं। फिर आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कैसे की? For the interview preparation, again, I get to the EG course, and I should be thankful towards Raj Arora sir, Ajay Malet sir, and of course others also. So Akash Gupta sir again. So for providing me with the basic PI foundation, क्योंकि उसके बिना I couldn't have formed the basic etiquette of thinking again. कैसे ऑन द स्पॉट आंसर करने हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक फाउंडेशनल पीआई क्वेश्चन दिए थे, एंड आफ्टर दैट दे टोल्ड मी पीआई क्वेश्चंस कैन कम आउट ऑफ द ब्लू, टोटली आउट ऑफ द ब्लू, एंड यू हैव टू लिटरली थिंक ऑन द Yes. स्पॉट। एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर पीआई, क्योंकि काफी सारे पीआईस में दे आस्क्ड मी थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन नोन टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई थॉट along with that process and I answered it. So that is one of the most important skills for PI, which is needed, thinking on the spot and analyzing it. And of course, the EG course for the PI helped me a lot for that. ओके। तो ये जो ईजी आपने कोर्स लिया इंटरव्यू का, उसमें क्या था? आपके पास नंबर ऑफ मॉक्स थे या आपकी बैंक प्रिपरेशन थी? व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? So for the EGPI preparation, you're asking about specifically. या या Yeah, for the PI preparation, first two interviews are like mocks. ये उसमें जो गलती करना है, you can just think of anything and ask of anything. Because you have to form your basics of PI. The main thing can't be actually grown from there. You can't literally form your thinking skills for the main PI. So first one or two mocks were for forming the basics only. इसके बाद the main PI would start. That is on the third one. So for the third one, I found some really good mentors like Sanjeev Ananda sir and Parth sir and of course others. And of course Shazar sir also helped me a lot for forming some basics answer also, because कुछ भी कभी भी दिमाग पे नहीं आता था, I would have just sent him a DM. Yes, sir, please help me on this question. How to form the answer? How to form a diplomatic answer on this? काफी सारे diplomatic way out भी होते हैं बहुत सारे questions के, तो he helped me in forming those answers again. ओके। सो इवेंचुअली जब आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो उसमें आपको कैसे हेल्प मिली? एंड फ्रॉम योर फर्स्ट इंटरव्यू इटसेल्फ, आप एज कॉलेज टू कॉलेज हमें एक एक्सपीरियंस शेयर करके बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर इंटरव्यूज? If I remember correctly, my first interview, it was, I think, SMHRD interview. And in that SMHRD interview, suddenly out of the blue, because I already had 3 years of experience, so I didn't think that they would be asking me grad questions. So that interview taught me a lot, because I didn't prepare my grad part at all. So जो भी दिमाग में था वही था. So basic पे सारे करके गए थे, and current affairs दिमाग पे थे, सारे वेट पे सब कुछ, सारे वेट एंड जीडीज भी हो गए थे. जीज जो होते हैं एक्चुअली स्नैप प्रोसेस में जी होते हैं, तो वो सारे हो गए थे. आफ्टर दैट आई वेंट इनटू द पीआई. After some one or two, after some the first panelist have finished his question, which are mainly focused around the general PI questions and general HR question, of course. Then came another panelist who started asking me about that, and from there I was like, why? So, but then still almost out with common sense actually, because थोड़ा बहुत दिमाग में तो रहता ही है, because your grad was something you have focused your 4 years on. So I was able to answer some of the question with this thing only. And of course, he must have understood, like I have spent around 3 years in another sector. तो थोड़ा बहुत इशू रहेगा, एंड जो भी नहीं आता था I just told him on the spot, sir, I can't really think of this at this moment, but I would learn about it later after the so this is the way, because अगर आपको कुछ आता नहीं, you should just say it on the spot कि sir अभी ये नहीं आता, I would learn about it later. That was my technique. After that PI, which told me a lot to expect anything, so I was started to prepare about everything, and that really helped me in other PIs. I had a whole bunch of things from which I've learned from. तो इसके बाद आपके क्या इंटरव्यूज थे? इसके बाद मेरे SMHRD के बाद मेरे SMHRD PA थे, एंड ऑफ कोर्स SIBM पुणे भी थे. SIBM पुणे इंटरव्यू भी था, जिसपे अगेन ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल आया. इसके बाद मेरा IIMT XIMBBM जो कि कन्वर्ट हुआ, एंड आफ्टर दैट ऑल थिंग्स कम्बिनेटेड इनटू XLRI इंटरव्यूज, जिसपे सब कुछ आ गया. एंड ये जनरल HR क्वेश्चन, जनरल PI क्वेश्चन, ग्रेड वर्क एक्स क्वेश्चन, सब कुछ एक साथ आके कल्मिनेटेड इनटू अ ग्रेड.
Okay. तो since आपने SAM HRD का experience हमें बताया, please tell us about SIBM also. So in the SIBM Pune PI, so they asked me literally around general nature question, and after that, the first panelist have asked me about the general question. The second panelist came in and asked me about my interest. So I told him that finance was my interest at that point of time. So then he asked me around how these things are working, like what was the current account deficit of India, and what was the fiscal deficit of India. And since it was the month of actually February, and the budget just came in, he asked me about my highlights on budget. तो वो सारे भी पढ़ के गया था, एंड उस पे इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन बजट, एंड अलोंग विद दिस वो बजट पे कितना खर्च हो रहा है, केपेक्स में कितना खर्च हो रहा है, वो सारे पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी ओके इट वाज अ गुड डिस्कशन, यू कैन गो. सो दैट वाज नाइस. एंड इसके बाद अगर हम NMIMS के इंटरव्यू की बात करें तो वो इससे कितना डिफरेंट था? NMIMS का स्ट्रक्चर ही थोड़ा बहुत अलग, जैसे कि स्नैप में क्या होता है कि जी वेट एंड देन पीआई, इन तीनों चीजों पे थोड़ा बहुत अननोन वेटेज भी रहता है, और किस पे क्या कितना रहता है वो पता नहीं. लेकिन एनएमआईएमएस में उन्होंने इस ओरिएंटेशन सेशन में ही उन्होंने बता दिया था कि वर्ड्स एंड ग्लेसर में रहेगा लाइक 20%, एंड दे प्रोवाइडेड अस द ब्रेकअप. तो इसके बाद उसी दिन मतलब यू कैन जस्ट फॉर्म योर ओन टैक्टिक्स, किस पे कैसे हैंडल करना है. जैसे कि वेट वाज माय स्ट्रांग पॉइंट, वर्ड्स एंड ग्लेसर वाज अननोन फैक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So and ACADS and work experience was in my favor. PI and Watson Glacier was unknown point. So Watson Glacier I just attempted and found, unfortunately those are just CR questions and CR answers which required the expertise जो मैंने हनी से सीखा था उस time around. And after that came the PI, and for the PI I was the last one of my batch, and my PI went on for around 10 to 12 minutes. But in that 10 to 12 minutes, I talked with them regarding everything from my college project, which was a due patent project. And after that, why was my project needed? And why is my current work experience, how is my current work experience related to my grad? ये सारी इन चीजों पे बात हुई थी. एंड ऑफ कोर्स द करंट अफेयर दैट इज रशिया यूक्रेन, उस पे भी बहुत सारी बात हुई थी along with the budget. So I think I was able to leave a mark with them, क्योंकि इसके बाद I got converted in NMIMS along with it. Definitely. And ultimately, if we talk about your XLRI interview, how was that? It went fine. It was one of the most wholesome PIs because वो काफी exhaustive था. XLRI PI में तो in fact they asked me like what sort of books you read and why should he read that is the panelist, why should he read this book, and I had to explain why he needed to read this book. And of course उसमें काफी सारे work ex related भी question थे, and some also asked me you are from general management, why do you want to come to HRM. Then I told him like sir HRM में I was always interested because I already had done some work in HRM. तो उन सारी चीजों पे बहुत सारा explanation भी था क्योंकि उस पे I already had experience, so it was a true experience जो उनको मैंने बताया, and they were convinced with it. Along with that current affairs पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, since in HRM they asked me like HR tools, वो सारी चीजों पे बहुत सारा क्वेश्चंस थे जो एक पता होना चाहिए even for the HRM PIs and even for PIs. So that was my strong point because already after SMHR interview I was like जो भी मिलता है सबको पढ़ लूं, कुछ मतलब कुछ भरोसा नहीं क्या कब आ जाए. That really helped me out. तो आपने इतने सारे इंटरव्यूज क्लियर किए हैं, कन्वर्शन हुए हैं आपके, सो व्हाट वुड यू से वाज द सीक्रेट टू cracking the interview? The first point which is too much needed for cracking any interview is expect the unexpected. कभी भी कुछ भी आ सकता है. And the second point would be you have to do your own spot thinking, क्योंकि on spot में कभी भी कुछ भी आ सकता है. You have to answer with a smiling face. कि कुछ भी आ सकता है, and you have to even provide them with valid points ताकि उन पे ऐसा ना लगे कि you are just saying things out of the blue. कुछ भी कह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए. You have to form your own coherent points. And third point is something you should always learn how to cope up with the stress. Even if it becomes a stress interview, you shouldn't take stress. ये तीन पॉइंट्स और which are my golden. And of course ये भी मेरे को EGPI से मिला है. And I am indebted towards them. बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी वैलिड पॉइंट्स यू शेयर. So eventually if I ask you what is that one piece of advice you'd like to give aspirants from your journey? Sure. To the current aspirants who are going to give the different aptitude exams right now for taking the Dream B school, I would just first suggest go along with the mocks and go along with the schedule sir gives us or any other mentor gives you, and stick with this. Mocks are not something through which you can judge yourself, but at the same time, mocks are something with which you can judge your current position in regard to your wants, LRD, or even BRC. Mocks, don't take them to your heart. Don't take those scores to your heart even, because ये कभी भी change भी हो सकता है. One day you might be the rank 1 in the country, one day you might be the rank 1000 in the country. So different करता है. And along with this mock, and you should always maintain your mental acumen.
अगर if you can maintain your mental peace at any point of time, that would actually help you during your PI state also. Because mental fortitude अगर सही हो जाता है, and then your PIs would go very good. I can confirm on that because I have tried this thing. So these are the two basic rules which I can say to the future aspirants right now. Yes. Thank you so much for sharing your insights with us. I'm sure बहुत लोगों को बहुत inspiration मिलेगी जिस तरह से आपने खुद को handle किया. Even after CAT, you have cleared all the main exams जो भी होते हैं OMETs. We are very happy कि EG एक part था आपकी journey में, and we congratulate you and we wish you all the very best for the future. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, thank you for being with us.